Both of these are name reaction. Mhm. Mariam, I think it will be the other way around. Yes, Harsha, correct. Okay, so 5 more seconds. Five, four, three, two, one, and zero. So this reaction here, it is the what reaction? Coal-based reaction है ना ये तो. This is coal-based reaction. This is Reamer-Tiemann reaction. In coal-based reaction, this is COO है और H. ठीक है ना? That means carboxylic acid. It is attached in the ortho position. In this case, CHO it is attached on the ortho position. ठीक है? Salicylic acid and salicylaldehyde. तो ये आपके पास D is the correct option. Ortho position में COOH and ortho position में CHO. नेम रिएक्शन है. उम्मीद था हमको कि आप लोग बताएंगे. चलिए ठीक है. Next one. You don't have to note this down. You can have your notebook with yourself, है ना? आप notebook अपने पास रखें and you can take the help of notebook. At least you can navigate around the notebook कि कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है. At least उतना भी धीरे धीरे कुछ कुछ पता चलते रहेगा. Then it will be helpful for you. Fine. Try this one. In the following reaction, the product is what? यार पीसीसी तो याद रहना चाहिए आप लोग को. पीसीसी भी नहीं याद है. चलिए देखिए. Yes, I think Mariam, that is correct. This is a 1 degree alcohol, and here we have a weak oxidizing agent. 1 degree alcohol and weak oxidizing agent. It is going to give me an aldehyde. Important thing about PCC is that it does not disturb the double bond. Double bond में कोई भी oxidation ये नहीं करता है. Fine. So what is going to happen? In the presence, in the place of CH2H, you are going to get an aldehyde with the same number of carbon. एक दो तीन चार कार्बन. चार कार्बन का aldehyde ढूंढना यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद हो. ये तो नहीं होगा. एक दो तीन चार कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी नहीं होगा. 1 2 3 4. This will be the correct answer. Okay. Some of you got the right answer. Moving on. Which of the following alcohol is resistant to oxidation? किसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है? Yes, very good. Now these things are there in the notes itself. 5 more seconds, guys. Five, four, three, two, one, and zero. So in the 16th question, here you have which of the following alcohol is resistant to oxidation. So यहाँ पर this 3 degree alcohol is present. This 3 degree alcohol, it is resistant to oxidation. Why? Because it does not have alpha hydrogen. Absence of alpha hydrogen है ना. 3 degree alcohol नहीं होता है ऑक्सीडाइज. 2 degree हो जाता है कीटोन में. 1 degree हो जाता है किसमें?
aldehyde में, fine, easily. So A is what, resistant to oxidation. How can you convert sodium phenoxide or to O hydroxybenzoic acid, या फिर you have to write the Kolbe's reaction. What will be the reagent we have just seen now? थोड़ा याद हो गया होगा आप लोग को शायद अगर. You can write the reagent in the answer, guys. No need to write the complete reaction, बस reagent लिख दीजिए, काफी होगा. Okay, 5 more seconds. 5. Yes, Harsha, that is correct. 4, 3, 2, 1 and 0. यार आप तो रिवाइज करके नहीं आए हैं बिल्कुल भी क्या? ओके फाइन, ये क्या? तो कोल्बेज रिएक्शन में सही है. You start with phenol, है ना? Here you add NaOH. You get ONA. इसमें CO2. उसके बाद H plus. So you get what here? OH and COOH. ठीक है. तो CO2 and H plus will be the answer for the first one. और सेकंड वाले के लिए आप पहले स्टेप में NaOH and CO2, सेकंड स्टेप में H plus. ठीक है ना? तो ये आपने H2 लिखा है, H2 नहीं होगा, H plus होगा. करेक्ट यही है? यस सर, मैं ठीक है, टाइप नो प्रॉब्लम. आई थिंक फॉर द 36, 36 के लिए, कि फर्स्ट वाले के लिए तो यू कैन राइट द आंसर इन द चैट. सेकंड वाला हम आप लोग को याद दिला देते हैं. सेकंड वाले के लिए आई एम गिविंग यू सम ऑप्शंस.
हम्म। हम्म। यस मरियम, करेक्ट, वेरी गुड। जी हाँ, पहला वाला सही है आप लोग का, दैट इट इज गोइंग टू बी CH3CHO। सेकंड के लिए यस, मरियम, हर्षान, यही है, यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इन दिस केस यू गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर आपके पास ब्रोमीन इन एक्वस पोजिशन, अगर एक्वस कंडीशन में क्या मिला हुआ है आपको, ब्रोमीन मिला हुआ है, फाइन। चलिए, मूविंग ऑन। ट्राई दीज इफ यू हैव योर व्हाट लाइक फोन, अगर आपके पास है देन प्लीज सेंड मी द आंसर। You will get 3 minutes for this. Two questions. There are two questions. You can find in the notebook also. You are free to use the notebook if you want. You can use the notebook. आप आंसर हमको दीजिए। वेरी गुड मरियम। यस या वेरी गुड। यस हर्षा, यस हर्षा, करेक्ट, वेरी गुड। हेलो, हमने आंसर लिखा हुआ है या आंसर लिखना पड़ेगा? ओके। तो फॉर द फर्स्ट वन सी, यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग को शायद कर सकते हैं, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज नॉट फेनॉल, दिस इज अल्कोहल। गोइंग टू गिव रिएक्शंस एज दैट ऑफ अल्कोहल के जैसा रिएक्शन करेगा। तो HCl का क्या होता है इसमें, इफ यू हैव HCl in the presence of alcohol, then haloalkene बनता है, fine. You will get an haloalkene in which a simple substitution reaction will take place. इसमें से CH2 जो है, इसमें से OH निकल के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, and here you will be having the OH. ठीक है, this will be the for the first one. Now this is a 3 degree alcohol, जिसको हम लोग कॉपर एंड हाई हीट से पास करा रहे हैं। तो इफ यू हैव 1 डिग्री तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन, 3 डिग्री में एल्कीन बन जाता है। तो यू हैव, ठीक, इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल है। शो यू CH3, कार्बन के पास दो हैं, CH3। तो एक एल्कीन बनने के लिए क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड एंड CH2, राइट। रिएक्शन विद हॉट कॉपर में आपको मिल जाएगा, अल्कोहल का रिएक्शन विद हॉट कॉपर में, दैट इट इज गोइंग टू गिव यू एल्कीन। होपफुली आप लोग को याद चीजें आ रही हैं। आई एम रियली हैप्पी विद द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग।
Okay, now we have the I think we have reached ethers now. ठीक है ना? ये आपके पास this is an ether HI के साथ reaction इसका, then alcohol in the presence of non-polar solvent, ठीक है, then anisole in the presence of anhydrous AlCl3. तो हम लिखें या फिर नहीं लिखें? ठीक है. Again, you will be getting 3 minutes. Answer कीजिए. Send the answer on my WhatsApp. Send your answers on my WhatsApp. Okay, I've got one answer. Very good, Harsha. The first one is correct. The second one is also correct. Yeah, the third one is also correct. Very good. नहीं मरियम, the first one is not right. Second one is right. Third one में कुछ किया ही नहीं है आपने. Yes, Mariam. Sir, I'll do it again. Okay. And also, Harsha, in the third one also you will be getting two products, right? Yeah, sir. The minor product. हाँ, correct. से मेजर बोला हुआ है क्या? नहीं ना. If they are not asking major ना, तो फिर सारे products आप लोग को दिखाने पड़ेंगे. Fine. मतलब at least all the organic products. Okay. Okay, sir. As you have done for the second one also. Mariam Batul has answered. पहला तो सही है, दूसरा वाला सही नहीं है मरियम. मरियम बतूल by the way. नहीं सर, मैं तो दूसरा वाला कर रही हूँ, एक सेकंड. तो पहला वाला कर ही रहे हैं. भेज. 3 मिनट हो गया. ठीक है, अ, जब तक हम, हाँ ठीक है कीजिए. जब तक हम नहीं करे तो फिर कीजिए. यही है. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज नॉट करेक्ट. मेटा पोजीशन में कहाँ से लग जाएगा यार? यही है. मेटा पोजीशन में तो नहीं लगेगा ना. यस सर, मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ कि नीचे कैसा लाइक लगा सकते हैं. अच्छा, नीचे दिखेगा कैसा? ओके फाइन. तो चलिए, एचआई के रिएक्शन में क्या करना रहता है? यू हैव टू सी. आपको सबसे पहले देखना है 3 डिग्री कार्बन है या नहीं है. अगर 3 डिग्री कार्बन है तो फिर उसमें आप लगा दीजिए क्या, हाइड्रोजन को, यानी कि आयोडीन को, है ना. 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री कार्बन है, इफ यू हैव अ 3 डिग्री कार्बन देन अटैच द हाइड्रोजन ऑन द 3 डिग्री कार्बन. इफ नॉट,
तो फिर आपके पास जो लोअर डिग्री है, लोअर डिग्री, उसमें अटैच होगा क्या, हैलोजन, ठीक है ना। तो मतलब लोअर डिग्री इन द सेंस जो कम सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो CH3 और CH3 CH2 में इट विल अटैच ऑन व्हाट, इट विल अटैच ऑन द CH3, तो आपको मिलेगा CH3I एंड रेस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट विल गेट OH। तो 2 कार्बन का OH मिल जाएगा, 2 कार्बन का अल्कोहल। इन दिस केस यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। एक आपके पास बेंजीन रहेगा इस तरह से, हियर यू विल हैव OH, इन द ऑर्थो यू विल बी हैविंग ब्रोमीन प्लस, here you will be having benzene, and in the para position you will be having bromine, है ना। The para will be major, the ortho will be minor. Similar will be the answer for third one, in which also you are going to get 2 products. So let me just copy this down. So the ortho product will look something like this, देखिए ध्यान से, C double bond O। तो by the way Cl नहीं लगता है, CH3 लगता है, ठीक है, असाइल लगता है, not the halide part। C double bond O, CH3, make sense ये किया। यस। बाकी बच्चों ने क्या किया था, CH3 था ना, हाँ CH3। मरियम ने नहीं किया था, मरियम बतूल, या, मरियम बतूल गलत हो गया आपका। हाँ सर मैंने यस, लिखा। हाँ ठीक। नाउ मूविंग ऑन। ये बताइए, इफ यू लुक एट द PYQs ना, और उसके बाद अपने नोट्स अगर आप खोलें, देन यू विल सी दैट जो कंप्लीट नोट्स जितना भी है ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द PYQ ओनली। कि यू गो एंड लुक, आप फ्लिप करें नोट्स के कुछ पेजेस एंड गो टू द रिएक्शन विद HI, ईथर का रिएक्शन विद HI, यू विल सी दैट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, ओके फाइन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज देयर, इससे ये सवाल आता है एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट द कंप्लीट मेरा जो कंप्लीट नोट्स है ना, इट इज बेस्ड अपॉन द PYQs ओनली, ठीक है। तो जब भी PYQs में कुछ ऐसी चीज दिखती है जो मेरे नोट्स के अंदर नहीं है, फिर हम उसको नोट्स के अंदर जरूर डाल देते हैं, राइट। तो एकदम क्वेश्चन वाइज आपको रहेगा। ऑल्दो ऐसे देखा जाए तो NCERT देखिए तभी वहां पे, बट NCERT इज नॉट वेरी सिस्टमाइज, है ना। चलिए इसमें बताइए। गॉट एन आंसर। मरियम and यही has answered, मरियम your answer is correct। चलिए, कैन यू गेस सम, फ्लिप द पेजेस एंड लुक एट द H3, हम ही आप लोगों को दिखा देते हैं। चेक इफ देयर इज एनी 3 डिग्री, check if there is any 3 and then attach the halogen to that carbon, remaining fragment will form alcohol, है ना। मैकेनिज्म देखिए, अगर आपके पास 3 डिग्री है तो देखिए आपके यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बोक्टाइन बन रहा है ना, फाइन। और अगर आपके पास 3 डिग्री नहीं है, ठीक है ना, कार्बोक्टाइन कैसे बनेगा, अनटिल इट इज SN1 रिएक्शन, तभी कार्बोक्टाइन बनता है। और अगर आपके पास 3 डिग्री मौजूद नहीं है तो सारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, SN2 की वजह से हो रहा है, फाइन। ये देखिए, बेंजीन हैलाइड इज फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन अकर्स बाय SN1, ठीक है। तो जब भी आपके पास आयोडीन इट इज अटैच टू 3 डिग्री या मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन, वो किस तरह से हो रहा है, SN1 के थ्रू हो रहा है।
नाउ इन द रिवीजन क्वेश्चन हमारे पास क्या है सवाल? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी हमने बात की थी दैट इफ यू हैव 3 डिग्री तो फिर आपको क्या मिलेगा, दैट आयोडीन द हाइड्रोजन एटम विल अटैच टू द कार्बन एटम व्हिच इज 3 डिग्री, ठीक है। एंड दैट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज दिस रिएक्शन इज अकरिंग थ्रू अ SN1 मैकेनिज्म, जहां पे आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। So this is also true and both of these statements are related, that is why A will be the correct answer, ठीक है। तो जब आपके पास 3 डिग्री कार्बन है, then the reaction it is occurring via SN1, other times SN2, है ना। 3 डिग्री कार्बन में या फिर बेंजाइल कार्बन हो या फिर अलाइल कार्बन हो, in all of these cases it is occurring via SN1 mechanism, बाकी सारे केसेस में it is going to be SN2। मूविंग ऑन, ये बताइए, सेम कंसेप्ट पे सवाल है। मल्टीपल आंसर्स, देखिए जब भी बेंजाइल भी हुआ ना, अगर हियर यू हैव बेंजाइल कार्बन, तो दिस बेंजाइल कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ना, इसके पे क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिलेगा। दिस पर्टिकुलर बॉन्ड तो ये तो कभी नहीं टूटेगा, दिस विल नेवर ब्रेक, है ना, ये हमेशा इंटैक्ट ही रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C6H5OH ही मिल सकता है। फाइन, इफ यू हैव अ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो यहाँ से तो अल्कोहल ही मिलेगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू HBr, C6H5 प्लस C6H5CH2Br। फाइन, तो C6H5OH, C6H5OH सिर्फ आपके पास कहाँ पर है, डी वाले में, तो डी इज ओनली द करेक्ट आंसर, C6H5CH2Br फिर, हाँ ठीक है। डज दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. ये बताइए जरा, हाउ डू यू कन्वर्ट फेनॉल टू पिक्रिक एसिड, प्रोपेन नोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ये हम लोगों ने कल किया था शायद, सेकंड वाला, सेकंड एंड थर्ड दोनों किया था शायद हम लोगों ने, सारा ही किया था क्या हम लोगों ने, आई थिंक वी हैव डन ऑल द 3, है ना, इन द लास्ट लेक्चर, नहीं। हम लोगों ने किया था शायद, आई थिंक। हम्म, सेम सवाल है ना, ठीक है, आई थिंक वी कैन देन स्किप द क्वेश्चन। हियर आर द रिएक्शंस बाय द वे, ये बताइए आप लोग, 34 नंबर, which of the following isomer is more volatile? Yes, Harsha, correct. Harsha, can you give the reason? Sir, because in the chat, In the chat.
नहीं। ओके फाइन, गलत आंसर। हर्षा, द आंसर इज नॉट राइट, द रीजन इज नॉट राइट। मरियम, योर आंसर इज करेक्ट, बट अगेन द रीजन इज नॉट करेक्ट। यही है योर आंसर एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, फाइन फाइन। देखिए, तो ओ नाइट्रोफेनॉल में और पी नाइट्रोफेनॉल में, ओ नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल, दैट मींस इट विल इवेपोरेट मोर इजीली। व्हाई? बिकॉज ओ नाइट्रोफेनॉल इट हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पी नाइट्रोफेनॉल के पास इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है ना। So this one is more volatile, this one is less volatile because it has intramolecular hydrogen bond. So inside a molecule, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जा रहा है, यहाँ पे दो अलग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। So two different molecules are having hydrogen bond due to which there is interaction between two molecules जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, and that is why it takes more temperature to get evaporated or boiled off. It has intermolecular. ठीक है, मेक सेंस? यस सर। चलिए ये कीजिए जरा, फेनॉल से टोलुइन जाना है आपको। फेनॉल टू टोलुइन बाय द वे है ना। CH3 बस नहीं लगाना है, फेनॉल का OH को हटाना भी है, उसके बाद CH3 लगाना है, यानी इथेनॉल टू इथेनॉल कीजिए। सर बस रिएजेंट लिखने का कुछ, ये आपको फोटो भेजने का है। दोनों चलेगा, वट एवर इज बेटर फॉर यू, जो भी आसान लगे आप। नो आंसर स्टिल नाउ। चलिए, somebody must send the answer. Yes, very nice मरियम, करेक्ट, बहुत सही। चलिए, let's take wait one more 2 minutes। यही कभी आंसर आया है, लेट्स सी हियर द आंसर।
Nope. यार K2Cr27 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यही? यही। Yes, sir. Sorry, हम्म mistake हो गई. जल्दी कीजिए too. Okay guys, by the way, you will understand that where you are lacking, है ना? तो कन्वर्जन वगैरह अगर आपको नहीं आ रहा है तो मे बी do some conversions from the NCERT, है ना? You can message me अगर आपको कहीं किसी कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है तो how to approach the conversion, then I will help you. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. तो फिनॉल से टॉलरेंस के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, यू हैव टू पुट जिंक डस्ट और फिर फिनॉल हट जाएगा, फिनॉल का OH हट जाएगा. फाइन. So this is the way. First like zinc dust, उसके बाद CH3 in the presence of AlCl3 and you will get toluene, है ना? Zinc dust क्या करता है, OH को हटा देता है. Now when you have two carbon atoms alcohol, you use PCC to convert it to aldehyde. Very simple reaction ना. Second वाला काफी आसान था. First वाले में I think that okay fine. You have to think a step ahead. Fine. चलिए try this one now. And कल काफी बच्चे नहीं आए थे and I had shared an important document that is distinction test के बारे में, organic distinction test. So let me reshare it for those who have joined today. अरे भैया आंसर्स तो बताइए एक एक करके. यू कैन राइट द आंसर्स इन द चैट. You just need to name the reagents. चलिए तो let's see. Bromination of phenol to 2,4,6 tribromophenol. Yeah, correct. Mariam correct and Harsha correct. Very good. Anyone else who has answered? ठीक. For the Sir, first मैं one we कर are रहा good. हूँ. हाँ I'm ठीक doing है. the third and fourth. जी जी जी. पहले वाले का हम बता दें, ये पहले वाले का भी नहीं बताया. पहला वाले का बता दिया सर. पहले वाले का बता दें, ठीक है. Here we will use bromine water, है ना? तो Br2 aqueous, या you can use Br2 plus water, है ना? किसी तरह से भी लिखते हैं आप. हम्म
Yes, Mariam, yeah, second one is fine, correct. In the second one, you can use any reducing agent. आप क्या क्या use कर सकते हैं? You can use H2 in the presence of nickel, है ना? Or you can use lithium aluminium hydride, or you can use sodium borohydride. Any one of the reagent is fine. Friedel Craft alkylation. Friedel Craft alkylation के लिए क्या यूज करेंगे बताइए जरा. और anisole. Anisole हो कोई भी चीज हो. What is the reagent for Friedel Craft alkylation? Okay, fine. I have got the answers now. Harsha, एक काम आपको बताते हैं. Anhydrous AlCl3 is not enough. You have to add a alcohol, sorry, an haloalkane also, है ना? RCl और इसके साथ में anhydrous AlCl3 will be present. Got it? Okay, sir. Oxidation of primary alcohol to carboxylic acid, yes. KMNO4, K2Cr2O7, any strong oxidizing agent will be good. For example, KMNO4 or K2Cr2O7, etc. Fine. ये बताइए. आई थिंक इसको करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑलरेडी डन. Okay, Mariam. First one is fine. Second one ठीक है, but चलिए ठीक है, कीजिए कीजिए. Okay, fine. ये here. Second one.
देखो भैया, थर्ड वन के लिए, फोर्थ वन के लिए आई गेस ना, इथेनॉल टू इथेनॉल, ठीक है। Fine. So phenol to benzene, it is zinc dust. We have already seen that. Dehydration of propane to all to propene. It's simple. आप यहाँ पर acid dehydration कर सकते हैं. Acid catalyzed dehydration. So concentrated H2SO4 plus heat. This would also work, है ना? इसी को याद रखिए. And as Mariam has answered 80% H2PO4 at 440 Kelvin, that also works. But बस इतना लिखना आपके लिए काफी होगा. Fine. H2SO4 plus heat. Then dehydrogenation of ethanol to ethanol, this will be done by what? आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? dehydrogenation, that means you're oxidizing, है ना? ऑक्सीडेशन में weak oxidizing agent PCC यूज कर लीजिए आप, चाहे आप PDC यूज कर लीजिए, चाहे आप CrO3 यूज कर लीजिए. Fine. All of these things are going to work. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, सही sir. है? Yeah, I think so. This is for it for today, I guess. ये बताइए, गिव रीजन वाला सवाल है. Tertiary butyl chloride on heating with sodium methoxide gives 2-methyl propene instead of 2-butyl methyl ether. इसका रीजन क्या है? Because when you have tertiary butyl chloride, a 3-degree haloalkane, it is going to undergo what? Elimination reaction rather than substitution reaction. Due to historically hindered 3-degree haloalkanes, the CH3O negative acts as a base and shows beta elimination. तो अगर आपके पास 3 डिग्री नहीं होता तो ये क्या कैसा शो करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक शो करता है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. बट बिकॉज इट इज 3 डिग्री एंड इट इज व्हाट स्टेरिकली हिंडर्ड, so rather than going to this carbon atom and attacking, इस कार्बन एटम पे ना जाके ये कहाँ पे चला जाता है? ये जाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन निकाल लेता है. ठीक है ना? so this is the answer. That means this particular whole reaction, it is occurring via SN2 mechanism, है ना? अब क्योंकि SN2 हो नहीं सकता 3 डिग्री पे, तो फिर क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है. राइट? चलिए, इसको लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग. And let me just I am sending today's PDF to you guys. So the next class will be probably on Sunday. ठीक है ना? Probably on Sunday. If not, then for sure on Monday. ठीक है? This is maybe. But अगर संडे को नहीं हुआ तो for sure मंडे को तो होना ही होना है. Fine. The next class will be on Monday, and you have to come with aldehyde and ketones. आप लोग को रिवाइज करके आना. aldehyde and ketones. Fine. कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग क्लास में देख लेंगे. aldehyde and ketones सारा रिवाइज करके आइएगा. Most of the portion of aldehyde and ketones will be done in the Monday या संडे, जो भी जब भी क्लास होगा उस दिन आप लोग का हो जाएगा. ठीक है? तो प्लीज सैटरडे तक ही आप लोग aldehyde and ketones क्या कर लीजिए, कम से कम रिवाइज कर लीजिए, है ना? एटलीस्ट मेक शॉर्ट नोट्स. व्हाट आई वुड से दैट whenever you are doing the revision now, please do not reading of note is of reading notes. अगर आप कर रहे हैं, नोट्स पढ़ते हैं अगर आप, then please नोट्स मत पढ़िए. ठीक है ना? नोट्स नहीं पढ़ना है आपको. to take the notes and notes के साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. you have to make short notes. ठीक है ना? you have to engage with the, you have to actively engage with the content. अगर आप passively बस पढ़ रहे हैं चीजों को ना, then अरे यार समझना भी था, है ना? people always they just keep on reading और वो मतलब उसको grasp नहीं करते हैं हमेशा. and how can you make your mind grasp always when you are reading? you have to engage with it. सवाल कीजिए, आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो माइंड आपका एंगेज होगा ही होगा, है ना? मेक शॉर्ट नोट्स. ठीक है ना? तो उस शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको दिमाग को एंगेज करना ही पड़ेगा. एंड सो दीज आर द ट्रिक्स टू efficient like efficiently use your time. रीड होता है या नहीं होता बताइए जरा? यू आर रीडिंग द नोट्स, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद याद आता है, अरे क्या पढ़े अभी हम, कुछ याद ही नहीं. होता है नहीं होता है? नहीं होता है किसी के साथ? होता है सर। होता है सर. होता है ना? कि मतलब कभी कभी आपका, आप पढ़ रहे होते हैं बट माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब माइंड ग्रास्प नहीं कर रहा होता है, यू आर मतलब माइंडलेसली रीडिंग इट.
आप ध्यान लगाते नहीं भाई, समझना भी था, याद आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए यहाँ तो एंगेज, कैसे एंगेज होंगे? अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो प्लीज, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी है, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसका फिर माइंड मैप बनाइए। ठीक है, माइंड मैप तो एक पेज के अंदर बनेगा। ये सब चीज ना इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है। माइंड मैप आप शॉर्ट नोट से देख देख के माइंड मैप बनाइए।